in the today's class, we'll cover up allotment of shares. We will discuss about oversubscription of shares and forfeiture of shares, then reissue of forfeiture of shares. So all these three content we will cover up here, detail one by one. So let us start with the first one, the illustration. Maybe you remembered in the last class I had stopped here. ठीक है, so एक problem हम Yes, लोग sir. किए थे and in the last class we had stopped here. So today we'll start from that point only. So जैसे कि this question in the last class we had seen, right? In that question I asked you one thing, that could you tell me this is like over subscription or under subscription? So oversubscription. So this is a over subscriptions, very right? So these things we had discussed, but we had not discussed that how to solve it. Okay, so just look the question very carefully. So far it is a over subscriptions. Let us start with the Mona Earth. Okay, first question. In this question, what is happening? The director decided to reject application of 1000 shares and their application money been refunded in full. ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? The directors, the boards, they are saying that so far we want to issue 12,000 shares, but we received an application for 13,000 shares, where 1,000 share is extra. So this extra shares amount we will refund. Okay, हम उनको refund कर देंगे and we will keep we will issue only 12,000. We may not go for extra. So in that case, we are not going to make adjustment for this, right? There is no pro data. This concept is not arising here. This is a clear case. In this, the extra shares money would be refunded to them with a regret letter, right? So the allotment money was duly received on the shares. Rest of the that shares, the allotment money has been received. And but during the calls, 100 shares money has not been collected. Okay, so these was calls in area. You may say we will consider here calls in area, which is for 100 shares. एक 100 shares का पैसा हमें नहीं मिला during the time of calls, right? So let us pass the transactions by keeping this question in our mind. So इसमें हम लोग calls in area देखेंगे और सेकंड क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे? ईस्टर्न कंपनी का क्या बोल रहा है? दिस इज ऑल्सो व्हाट इज दैट? दिस इज a simple case, I believe so. 40,000 shares the company wants to issue, and in that case application was received for हाँ सर जब हम लोग पैसा ड्यू कर देते हैं, मतलब हाँ कंपनी जब पब्लिक को पैसा ड्यू कर देता है और सर हाँ पेमेंट रिसीव नहीं होता है, कॉल कॉल का हाँ पेमेंट, तब सर वो कॉल्स इन एरियर्स हो जाता है। हाँ, तो कॉल्स इन एरियर हो जाता है, वेरी राइट। तो कॉल्स के टाइम, ठीक है, जब ड्यू होता है कॉल्स इन एरियर हम लोग ट्रांजेक्शन उसको लिखेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट, कॉल्स इन एरियर आएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड, दैट इज देयर इज नो ओवर सब्सक्रिप्शन केस। यहाँ पे 40,000 शेयर्स कंपनी वांट्स टू इश्यू, एन एप्लीकेशन हुए रिसीव्ड फॉर 40,000 शेयर्स। ओके, द कंपनी मेड द अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट इन फुल। तो इसमें कोई, दिस इज a simple case. Second one is a very simple case. 40,000 shares company wants to issue and they got application for 40,000 shares. All the amount has been collected as per their requirement. ठीक है? So sir please next slide थोड़ा देखेंगे इसमें। हाँ सर। इसमें next slide देखेंगे तो look at the this is the answer. Dear student, as you know, we are going to pass the journal entry. So this is for the Mona Company Limited, Mona Earth Mover Company Limited. So in that case, that 13,000 against company wants to issue 12,000 shares, but they got an application for 13,000 shares. So that's why the application money, the first journal entry which we have to pass is bank account debited to share application, because money has received against the share application, and that is for 13,000 shares.
Okay, so this money we have received. Now, when we are going to, and this money would be transferred to share capital. Now, so in the share capital, you could find out we have not written what we have not written. We have not written the refunded one. So Yes, sir. we have received आप amount अगर देखोगे we have received कितना पैसा receive किए 13,000 into 30 करके 3,90,000 amount you have received. But जब share capital को transfer कर रहे हैं then we are transferring only 12,000 shares into 30 करके कर रहे हैं. So it is coming 3,60,000 not 3,90,000. So total application money has not been transferred to share capital. Okay, because the management had decided we will not consider the excess share amount. So now in the second case you could find out देखो share application account debited to bank account. बैंक This is the हाँ this is 1000 the 1000 share into 30. Very good, right? अच्छा आप लोग मुझे एक चीज बोलो, अगर मैं जो सेकंड जर्नल और थर्ड जर्नल को मैं एक ही जर्नल एंट्री पास करना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू मेक एनी अनदर मैंने टू जर्नल एंट्रीज, तो इसमें क्या कर सकता था मैं? आई डोंट वांट टू पास दिस टू जर्नल एंट्री, पहले ट्रांसफर किया फिर मैं रिफंड किया, ये शेयर दो जर्नल एंट्री हुआ. कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट. नहीं, उसमें क्या करता, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू बैंक. कहाँ पे? सेकंड ये एंट्री में. हाँ सर, सेकंड वही एंट्री बोल में रहा मैं लिख सकता था वो. हाँ वेरी गुड. मैं हाँ ठीक है अंकित, मेरा साउंड थोड़ा डिस्टर्ब हुआ तो इस. ओके गुड. हाँ, तो दिस इज हाउ वी कैन पास द जर्नल एंट्री फॉर द कैंसलेशन ऑफ शेयर. तो जब रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, जब रिटर्न करते हैं वी आर गोइंग टू पास द रिवर्स जर्नल एंट्री व्हिच इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक, नथिंग एल्स. ठीक है, दिस इज व्हाट द सिस्टम ऑफ पासिंग द जर्नल एंट्री. उसके बाद वी आर गोइंग फॉर द अलॉटमेंट. एज वी नो अलॉटमेंट कितना शेयर का करेंगे? 12,000 शेयर का ही करेंगे बिकॉज एक्सेस मनी वी हैव रिफंड. नाउ वी हैव ओनली 12,000 शेयर्स. Against the 12,000 share, we'll ask for the allotment money, that is rupees 40. So it is 4,80,000. So this is the due entry. Share allotment account debited to share capital. So this is the due entry you are going to make. Then after we have again due करने के बाद we have received the allotment money. Bank account debited to share allotment against the 12,000 shares into 40 करके. Now we are going for the what? Calls. So जब calls में जाएंगे, so in that case again 12 हम लोग ड्यू कर रहे हैं calls को. Share fast call account debited to share capital. Again in the fast call, as you know, जब हम लोग रिसीव कर रहे हैं we are not receiving, isn't it? हम लोग कितना रिसीव कर रहे हैं उसमें calls में we are not getting money for how many shares? For 100 shares, isn't it? 100 shares into 20 rupees, वो मैं रिसीव नहीं कर रहा हूं. सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द फर्स्ट कॉल ड्यू, आफ्टर द फर्स्ट कॉल ड्यू, आई हैव आई एम गोइंग टू रिसीव बैंक अकाउंट टू शेयर फास्ट कॉल. कितना पैसा आएगा? आई विल नॉट गेट मनी फॉर 100 शेयर्स. सो 12,000 शेयर्स के ऊपर कॉल हुआ था, लेकिन 12,000 माइनस 100 शेयर्स कितना हो गया? 11,900 शेयर्स. यस सर, 2000 रुपीज. हाँ, 11,900 शेयर्स के ऊपर हमें पैसा मिलेगा. 11,900 शेयर इंटू 20, सो ये हो गया 2,38,000 हो गया. सो दिस अमाउंट वी हैव रिसीव्ड. नाउ इन द सेकंड एंड फाइनल कॉल व्हाट हैपेंड? सेकंड एंड फाइनल कॉल में भी हम लोग देखे, वहां पे भी हमारा क्या है, पूरा पूरा तो हम लोग ड्यू तो पूरा ही चार्ज करेंगे 12,000 रुपीज. 12,000 शेयर्स के अगेंस्ट में ही ड्यू चार्ज करेंगे. सो दी सेकंड एंड फाइनल कॉल जो है वी हैव ऑलरेडी मेक द ड्यू एंट्री फॉर ऑल, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रिसीप्ट्स वहां पे भी 100 शेयर्स के ऊपर हमें नहीं मिला, राइट? सो वहां पे फाइनल कॉल का अमाउंट कितना था? 10 रुपीज, राइट? सो 1900 शेयर्स, 1900 कैसे हो गया? 12,000 सॉरी 11,900 शेयर्स होगा because 12,000 shares minus 100 shares. So 11,900 shares into
10, तो ये कितना हो गया? 1,19,000 shares. So this is how you are going to make the journal entry. I think it is clear to all of you. ठीक है, वेरी गुड सर। प्लीज थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड कर देंगे सर। Now we will see the another one, right? सर ये That सेकंड is क्वेश्चन का second question का था ये। ना सर, ये अभी अ- जो कर रहे हैं। हाँ, अभी तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। बुक ऑफ ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड ना, ये तो सेकंड क्वेश्चन का है जो नॉर्मल है। हाँ सर। ठीक है, इसमें कोई डाउट था? देखो इसमें नॉर्मल था, इसमें कोई ट्रिक ही नहीं था, बिकॉज सर इसमें हमने 40,000। साथ बोलो। में डिप करेंगे। हाँ बोलो। सब पूछ रहे कि सर इसमें फर्स्ट और फाइनल कॉल का ट्रांजैक्शन साथ में करेंगे। हाँ हाँ, वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें तो कोई ये नहीं था ना, तुम्हारा अदर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं था। हाँ, एरियर नहीं है, एडवांस नहीं है, कैंसिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। सो इट्स ए सिंपल जर्नल एंट्री यू हैव टू मेक फॉर दिस। ठीक है, देखो इसमें कुछ डाउट आ रहा है क्या? 40,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड किए, देन वी हैव रिसीव्ड अलॉटमेंट मनी, देन वी हैव रिसीव्ड कॉल्स मनी, दैट्स इट। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट, लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। So please go through to the next slide. Here you could find out Chronic Limited. This is a company. Please go through the case very carefully so that in this case you could find out like कितना है इसमें? 10,000 equity shares company is issuing with rupees 10. Total value है 10 rupees. All the shares were fully subscribed and paid, except a shareholder having 100 shares who could not able to pay for second and final calls. बनेगा कि नहीं अनिकेत? दिस क्वेश्चन देखो थोड़ा ठीक से। कैन यू डू दिस? ये बनेगा? ये क्वेश्चन में कुछ इज देयर एनी डिफिकल्टी पॉइंट? Can you tell me this question is related to which concept? सर फॉर फीचर एंड रीइशू। नहीं, this is not yet forfeited and reissue. यहाँ पे again, these share were fully subscribed and paid up, except for a shareholder having 100 shares who could not pay for calls in area, right? This is again similar to calls in area. Remember? सर Okay, इसमें calls in area. एप्लीकेशन अलॉटमेंट का सिंपल एंट्री होगा। हाँ, ठीक है, सर फर्स्ट कॉल का भी सिंपल सिंपल एंट्री होगा, नॉर्मल जैसे होता है। very good. सर फाइनल कॉल का सर पैसा सर पूरा ड्यू करेंगे। पूरा ड्यू करेंगे, लेकिन जब रिसीव करेंगे रिसीव के टाइम सर 9,900 शेयर सर रिसीव करेंगे। वेरी गुड, 9,900 शेयर्स के ऊपर ही हम लोग पैसा रिसीव करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो दिस सर और इज बाकी रिलेटेड टू योर फॉर। हाँ, सर बाकी लास्ट एंट्री सर क्या होगा? सर ये 100 से जो एक शेयर होल्डर का छूट गया था। उसी में ही रहेंगे हम लोग, ठीक है, उसी में ही रहेंगे। अब क्या है, जो 100 का छूट गया ना, उसको हम लोग इसमें नहीं दिखाएंगे अभी। तो सर थोड़ा नेक्स्ट एंट्री थोड़ा दिखाएंगे ना सर? नेक्स्ट स्लाइड। बारीक सर। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड थोड़ा काइंडली सर। तो ये था, देखो अनिकेत एंड अंकित, दिस इज व्हाट, यहाँ पे हम लोग क्या क्या लिए?
in this question you could find out what are the terms we have utilized. Chronic का देखो, bank account debited to share application, right? जो simple था, due किए, then transfer किए, then allotment was due, then we have received the allotment. First call was due, then we have received the first call, then second call was due. But while the receiving, here you could find out I have written a terms, calls in arrear, right? So if Yes, sir. somebody will ask you कि where to pass the journal entry, calls in arrear कहाँ लिखोगे? We can also write down कि calls in arrear we can mention here in the journal entry, no issue. Could have Okay, written, sir. Clear. क्या लिखते हैं हम लोग? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड कॉल, जो पहले हम लोग किए थे, राइट? इसका प्रीवियस वाला ट्रांजैक्शंस sir. में वी हैव नॉट रिटन एनीवेयर कॉल्स इन एरियर, बट इन दिस केस वी हैव रिटन कॉल्स इन एरियर. अंडरस्टूड? So if we are not writing calls in arrear, then bank account में how much amount will be writing? 24,750. And in share second call में भी हम लोग उतना ही लिखते, 24,750. Okay? But here we have mentioned calls in arrear. And calls in arrear, remember why it is debited calls in arrear? Because it is a loss to the company, right? The amount which we have not received from the shareholders on calls, it is a loss for us. So that's why it is been debited, It's right? debited. हाँ, इसको हम लोग डेबिट किए, जैसे लॉस को हम लोग डेबिट करते हैं, as you know. Sir, please, can we go to the second slide, sir? Barik sir, can we go to second slide? Barik sir, can we go to second slide, sir? हाँ. So now there is another question here you could find out. यहाँ पे क्या बोल रहा है in this slide? Please go through to this slide very carefully and try to understand what this question this question related to which concept. Please try to correlate. Please try to correlate. Question में क्या है and what it want to say. तो सुपरमैन कंपनी लिमिटेड क्या बोलना चाहता है? Is it over subscription, under subscriptions, क्या है? I think it is under subscription. It is under subscriptions. ठीक है, 4 lakh shares था and the company received application for 2,50,000. Very good. ठीक है, 4 lakh shares the company wants to issue, but they got a application for 2,50,000 shares. The company finalized the allotment on 2 lakh shares and rejected allotment money for 50. हाँ बोलो. सर ये सर 2 लाख शेयर्स मतलब सर सब्सक्रिप्शन 2 लाख शेयर्स का हुआ है. देखो एप्लीकेशंस तो आया 2,50,000 का, ठीक है? तो मैं क्या बोला, एप्लीकेशंस आने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है? द कंपनी फाइनलाइज द अलॉटमेंट ऑन 2 lakh shares. That means 2 lakh against 2 lakh shares only the company can allot the shares against 2 lakh applications. ठीक है? Because of जब एप्लीकेशन रिसीव करते हैं we also see कि the application has properly filled up, all the required information has been properly given by the shareholders. तो हम लोग वहां पे भी the company also going to reject the application sometimes if it is not duly filled. Understood? तो कंपनी उसके हिसाब से क्या फाइनलाइज किया? Even though the company wants to issue 4 lakh shares, but they got an application for 2,50,000 shares. But during the time of the allotment, company has finalized. Company को लगा नहीं, against the 2 lakh shares we can do the allotment, and जितना excess रह गया, that is 50,000 shares, it would be refunded. Okay, तो reject कर दिया application 50,000 shares का. The company has that power, right? So Okay, now the sir. company did not make the final call. देखो यहाँ से very carefully, the company did not make the final call. कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं किया, ओनली अलॉटमेंट तक ही कॉल किया, राइट?
So the company received all the amount except on 2000 shares where call money has not been received. Okay. So the company received all the amount except on 2000 shares. 2000 शेयर्स के ऊपर उसने कॉल नहीं किया, मतलब 2000 शेयर्स के ऊपर उसने पैसा रिसीव नहीं किया. सो 2000 शेयर्स के अगेंस्ट में हम लोग कॉल सिनेरियो बुक करेंगे. सो इन दिस क्वेश्चन हाउ द अबव अमाउंट विल बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट. हम लोग उसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? अभी तो खाली हम लोग जर्नल एंट्री कर रहे थे, ठीक है. तो बैलेंस शीट हाँ में सर। कैसे शो करेंगे उसको? आप मुझे बोलो कि फाइनल कॉल अमाउंट कितना है फ्रॉम दिस क्वेश्चन. फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है, रुपीस कितना है फाइनल कॉल का? 10 रुपीस इज सर द फेस 2 वैल्यू. रुपीज सर 2 2 रुपीज। रुपीस हम 2 रुपीस इज द फाइनल कॉल के ऊपर हम लोग का क्या रहेगा, कॉल सीन एरिया, ठीक है. तो लेट अस हाँ सी. सर। तो सर प्लीज कैन वी गो टू नेक्स्ट स्लाइड सर. सो नोट्स टू अकाउंट में व्हाट वी विल शो हियर, यू कुड फाइंड आउट दिस द बैलेंस शीट. कुड यू टेल मी व्हिच साइड इज रिप्रेजेंट? शेयर कैपिटल कौन सा साइड में आता है ऑन द बैलेंस शीट? सर इक्विटीज एंड लायबिलिटी। Liability side में आता है, right? In the balance sheet it will appear on the liability side. So while writing the share capital हम लोग क्या लिखेंगे? Authorized capital or registered capital or nominal capital, it has the same meaning, right? So authorized capital कितना था? 4 लाख shares at ₹10. तो कितना लिखेंगे? 40 लाख shares था, ठीक है. तो शेयर कैपिटल 40 लाख था. इशूड कैपिटल कितना है? 2 सर लाख 2 लाख। 50 शेयर्स. नो डाउट हम लोग एप्लीकेशन रिसीव किए, लेकिन अलॉटमेंट कितना किए? 2 लाख. इशू 2 लाख ही हाँ किए. सो 2 लाख शेयर्स एट ₹10 तो कितना होगा? 20 lakhs. नाउ क्वेश्चन कम्स, सब्सक्राइब कितना हुआ 2 लाख शेयर्स में? सब्सक्राइब्ड सर 16 लाख। 16 lakhs, ठीक है. तो सब्सक्राइब कितना हो रहा है यहाँ पे? सब्सक्राइब क्योंकि फाइनल कॉल तो कंपनी कर ही नहीं रही है, इजंट इट? फाइनल कॉल तो कंपनी कर ही नहीं रही है, तो कितना तो कॉल की? एप्लीकेशन कॉल हुआ, अलॉटमेंट कॉल हुआ, फर्स्ट कॉल जो है वो कॉल हुआ. तो दिस अमाउंट इज कमिंग 8 रुपीज, ठीक है. सो 2 लाख शेयर्स इंटू 8 रुपीज, सो ये हो गया 16 लाख शेयर्स, राइट. आउट ऑफ 16 लाख शेयर्स पब्लिक ने कितना पैसा दिया? सर ये कॉल सिनेरियोस वाला नहीं समझ में आ रहा है सर, 6000 क्यों हुआ इसमें? क्योंकि देखो सब्सक्राइब जब किए ना, तो जब सब्सक्राइब किए दे हैव कॉल्ड ऑफ, फाइनल कॉल तो वो किया ही नहीं है अभी तक, ठीक है. ओनली दे हैव कॉल्ड अप टिल फर्स्ट कॉल. तो फर्स्ट कॉल तक कितना कॉल हुआ है? 8 रुपीज टोटल अगेंस्ट 2 लाख शेयर्स. सो it is 16 lakh shares. But in the first call itself, right, the shareholders, how many shareholders they could not able to pay the amount? कितने सर शेयर क्वेश्चन एक होल्डर्स बार थे जो वापस पैसा नहीं दिखाइए। दे पाए? हाँ सर, थोड़ा बैक जाएंगे सर सवारी से। क्वेश्चन के लिए. देखो, the company did not make the final call, right? The यस सर company समझ। received all the यस amount. सर तो 2000 2000 शेयर शेयर सर के ये ऊपर नहीं हुआ, मनी रिसीव नहीं हुआ हाँ था। यस सर। समझ गए ना. 2000 तो into 3 सब्सक्राइब ये नहीं किया, 6000। 2000 शेयर के ऊपर ही सब्सक्राइब नहीं किया. समझ गए ना? हाँ सर। गुड, वेरी गुड. सर प्लीज सर नेक्स्ट स्लाइड सर जो था हमारा. हाँ, तो दिस इज 2000 शेयर्स को तो जो था अकॉर्डिंगली इट हैज बीन कंसिडर्ड. सर ये तो सर ये कॉल सिनेरियोस तो फर्स्ट कॉल का है। हाँ ये फर्स्ट कॉल का है अभी तक, ठीक है. फर्स्ट कॉल का। हाँ सर। हाँ, क्योंकि हमें मिला नहीं है तो इसलिए हम लोग उसको माइनस कर रहे हैं. 2000 इंटू कितना रुपीस के? 3 रुपीस था ना फर्स्ट कॉल का. हाँ सर। फर्स्ट कॉल हाँ का सर 3 3 रुपया रुपीस हम था। लोग मांगेंगे, 3 रुपीस. तो 3 रुपीस इंटू 2000 6000 हो गया, जो हमें मिलेगा नहीं.
तो हमें कितना मिलेगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल 15,94,000। इज इट क्लियर? नोट टू अकाउंट बना पाओगे? क्लियर सर। गुड, हाँ ठीक है सर। सर। प्लीज थोड़ा हम लोग सर नेक्स्ट स्लाइड थोड़ा जाएंगे। हाँ ठीक है। So देखो, this is now we talk about, now we have discussed lot of about calls in area, but there are the some cases where the company pays some excess amount, isn't it? Or they pay some amount in advance. Okay. So sometimes shareholders pay part or whole of the amount of the call not yet made. And before making the final call or the call due, the shareholder used to pay the amount in advance. So the amount so received from the shareholder is known as calls in advance. Shareholder पहले से ही पैसा दे देता है, right? They used to pay the money in advance and they want any tension further. ठीक है? So this is how this term is known as calls in advance. The amount received in advance is liability of the company, definitely, and should be credited to calls in advance account. Okay, तो calls in advance also is a liability because अभी तक due नहीं हुआ shareholders को, but they have paid, so it is an obligation for the company. Now the amount received will be adjusted towards the payment of calls as and when they become due. So now this is the responsibility of the company. जबकि वो shareholder already they have made the payment, हमें on the due date में वो amount को क्या करेंगे, adjust कर लेंगे. ठीक है? So this is the Yes. company responsibility. अभी देखो, this is very important term which many time it comes as a short question. As per the company acts, provide for the payment of interest on calls in advance at a rate not exceeding 6% per annum. Okay. So the company, as per company act, says that if some shareholders is making you advance payment, then you can pay some interest to them. Okay, not exceeding 6% per annum. तो आप उनको इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हैं. सो द कॉल्स इन एडवांस में हम लोग क्या देखो, कॉल्स इन एडवांस इज ए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी वेदर इट इज अ प्रॉफिट फॉर द कंपनी और लॉस फॉर द कंपनी. सर प्रॉफिट फॉर द कंपनी सर। प्रॉफिट एंड इट इज बेनिफिट फॉर द कंपनी कि पहले से उसको पैसा यस मिल गया. सो इट वुड बी अपियर ऑन द डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. सर क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड. कॉल्स इन एरियर कहाँ आता है, डेबिट साइड में, and calls in advance is appearing on the credit side, क्रेडिट right? साइड। So good, very good. So on the due date of call, the amount of calls in advance is adjusted by the entry which is known as calls in advance account debited to calls account. जहां पे हम लोग एडजस्ट करेंगे, सेकेंड कॉल हो सकता है, फाइनल कॉल हो सकता है. ठीक है? So all these terms you are using over there. The balance in calls in advance account is shown on a specific separate item under the title equity and liability. Liability side में हम लोग show करते हैं in the company balance sheet under the head of current liabilities. Remember ये कहाँ जाता है calls in advance? It appear on the liability side. That too it's a current liability. As a subhead अदर करंट लाइबिलिटी बोल के हम उसको मेंशन करते हैं. इट इज नॉट एडेड टू अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल. रिमेंबर, सो कॉल्स इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी. इट इज अंडर ऑब्लिगेशन if provided by the article to pay interest on such amount from the date of its received up to the date when it is appropriate called due for payment. A stipulation is generally made in article regarding the rate at which interest is payable. तो हम लोग कितना इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, 6%. ओके, मैक्सिमम टू 6%. सो इन दैट केस देखो, हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना महीना एडवांस पेमेंट रहा. 6 महीना का एडवांस पेमेंट है या 3 महीना का, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टाइम. अकॉर्डिंगली वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट. ठीक है? सर इंटरेस्ट सर कितना पे करना है? मैक्सिमम टू 6%. एंड वो हम लोग मेंशन सर पे करेंगे किस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में. पे हम लोग एडवांस पे को करेंगे शेयर होल्डर्स को, जिसने एडवांस पेमेंट कर दिया है पहले से. ठीक है? यस सर।
मैंने सोचो Yes. अनिकेत मेरा शेयर्स रखा है 10,000 शेयर्स, और जिसके अगेंस्ट में वो कॉल मनी पहले से ही पे कर दिया बिफोर इट इज ड्यू, और ड्यू होने वाला तो 6 महीना के बाद, एंड 6 महीना पहले से ही उसने पे कर दिया मुझे। ओके, Yes, sir. so now next go to the sir, please can we go to the next slide for the question? ओके, सो देखो यहाँ पे कनिका कंपनी लिमिटेड रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज्ड इक्विटी 2 लाख। थोड़ा क्वेश्चन में जाओ एंड यू टेल मी कि ये क्वेश्चन में क्या क्या चीज इसमें है इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है? अंडर है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, कुछ पता चल रहा है? सो दिस इज ए केस ऑफ एट पार, ठीक है। कंपनी वांट्स टू इशू 2,000 शेयर्स, बट फॉर सब्सक्रिप्शंस दे वांट टू इशू 1,000 शेयर्स। अभी 1,000 शेयर्स ही वो देना चाहते हैं पब्लिक को, एंड सर दे ये 2 रिसीव्ड लाख तो एप्लीकेशन। सर ऑथराइज कैपिटल है ना? हाँ, ये कैपिटल है। कैपिटल को कैसे शेयर्स पता चलेगा? टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएगा। 2 लाख बाय 100 अगर हाँ। करेंगे तो कितना शेयर्स निकलेगा? 2,000 शेयर्स। समझ में आया? हाँ सर, जी सर। तो यहाँ पे सब कुछ दे दिया है। 2 लाख शेयर्स उसको चाहिए, मैंने अमाउंट चाहिए, लेकिन उसके लिए अभी वो 1,000 शेयर्स ही दे रहा है पब्लिक को। दिस इज व्हाट द अमाउंट of application allotment and calls. Application money on 1,000 shares was duly received, 25। उसने received भी किया। Allotment was made, allotment भी हो गया। The allotment amount was received in full, कोई problem नहीं है। But when the first call was made, one shareholder fails to pay amount on 100 shares held by him, and another shareholder with 50 shares paid the entire amount on his shares. Okay, the company did not make any other calls. इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन में दोनों चीज है, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। समझ में आया? यस सर। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ये क्वेश्चन में वी विल गेट बोथ द थिंग्स। ओके, यस सो अगर हम लोग देखेंगे इसमें, सर कैन वी गो टू नेक्स्ट स्लाइड सर? क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है? सर, कॉल्स इन इसमें कॉल्स एरियर इन भी है, एडवांस में केस का है सर, ये नहीं समझ में आया हमको। अरे 50 देखो वहां पे लास्ट में क्या लिखा था कि 50 शेयर्स के ऊपर वन शेयर होल्डर हैज पेड ऑल अमाउंट पेमेंट कर दिया था, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। ओके सर। ओके, तो अब देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें जैसे कि हमारा है, आप लोग देख सकते हो, तो पहला एंट्री तो इजी है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, कोई वहां पे टेंशन नहीं है। एंड शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में भी ट्रांसफर कर दिए। इन बिटवीन दैट अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ, ठीक है। सर फर्स्ट 5 अलॉटमेंट मनी एंट्रीज ड्यू में कुछ हुआ। डाउट नहीं। हाँ, पास दो एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलॉटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कम टू दी फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल ड्यू भी में तो क्या हुआ सिंपल था हुआ। हमारा? हाँ, फर्स्ट कॉल में वो क्या किए हैं? फर्स्ट कॉल में आप लोग जैसे देख सकते हो यहाँ पे, फर्स्ट कॉल अमाउंट दैट इज ड्यू कितना हुआ? 20,000 रुपीज। बट जब रिसीव हुआ देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ यू सी द नरेशन ना, यू कैन अंडरस्टैंड। तो हम लोग कितना पैसा रिसीव किए, ठीक है।
पहले हम लोग देख लेते हैं कि शेयर फर्स्ट कॉल में कितना पैसा आने वाला था. हाउ मच मनी शुड यू रिसीव फ्रॉम शेयर फर्स्ट कॉल? 20,000। 20,000. तो 20,000 देखो, पहले हम लोग लिख देते हैं टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000 क्रेडिट में. ठीक है. नाउ हम लोग कितना पैसा रिसीव्ड किए. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट. तो हम लोग को ये पता चला कि 100 शेयर्स जो है नरेशन में देखो, द फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 900 शेयर्स. 900 शेयर्स के ऊपर हम लोग पैसा रिसीव किए. ठीक है. सो हाँ, कॉल्स इन एरियर फॉर 100 शेयर्स हम लोग रिसीव नहीं किए. तो कितना पैसा रिसीव नहीं किए कॉल्स इन एरियर? हमारा हो गया 100 शेयर्स इंटू 20 रुपीज करके 2000. सो कॉल्स इन एरियर डेबिट किए 2000 रुपीज, जो हमें नहीं मिला. ठीक है. नाउ तो 900 शेयर्स इंटू 20 अगर करते हैं तो कितना हो रहा है? सॉरी, 900 अगर नहीं मिलता है तो कितना के ऊपर मिला हमें पैसा? कितना शेयर हम लोग इशू कर रहे थे? 900 1000 शेयर्स. 900 शेयर्स इंटू 20 कितना हो रहा है? 1800. बैंक 1800। अकाउंट में कितना आना चाहिए? 1800. लेकिन हाँ सर। उसमें से एक शेयर होल्डर ऐसा था, ए शेयर होल्डर वाज देयर कि उसका कितना शेयर्स था? 50 रुपीज, 50 शेयर्स था. तो 50 शेयर्स के ऊपर वो ऑलरेडी फाइनल कॉल का भी अमाउंट पेमेंट कर दिया है आपको. समझ में है? 50 शेयर्स सर। के ऊपर वो फाइनल कॉल का अमाउंट आपको पे कर दिया इन एडवांस. तो आपका 1800 होना चाहिए था बैंक रिसीव्ड में. लेकिन आप 50 शेयर्स के ऊपर 25 रुपीज जो है, कितना हो गया बेटा आपका? 1250. हाँ सर। 50,000 इंटू 50,000 इंटू 25 रुपीज कितना हो रहा है? 1250 रुपीज, जो आपको Yes, sir। एडवांस मिल गया फाइनल कॉल का. तो 1800 प्लस 1250 कितना हो गया? 19,250. दिस टोटल अमाउंट यू हैव रिसीव्ड, यस और नो? Yes, sir। तो वी हैव रिसीव्ड 19,250. that is the sum of 1800 plus 1250. so it is coming 19,250. ठीक है. तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट था 1250 वो क्या था? कॉल्स इन एरियर. सो वी हैव रिटन हियर कॉल्स इन एरियर. हो गया. फाइनल कॉल तो हम लोग अभी किए ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला सर। है फाइनल कॉल अभी तक नहीं हुआ है. नो अंडरस्टूड? सर। देखो, हाँ कॉल्स इन सर। एरियर, कॉल्स इन एडवांस एक ही क्वेश्चन में था, and that was the last transaction. Go through the narration, we can understand everything clearly. ठीक है. Is that clear? Yes, sir। Okay. Sir, can we go to करने के लिए कोशिश कीजिए सर. sir, we will be getting some classes in coming week, sir. Barik sir. No sir, this is the. So maybe tomorrow I can take your class, right? ओके सर। तो आप वो मैसेज कर देना अपने फ्रेंड्स को. सो आई विल कवर अप देयर. ठीक है. आप लोग रहोगे मॉर्निंग में. आई थिंक यू डोंट बी हैविंग एनी क्लास, सो आई विल टेक योर क्लास. हाँ. एंड वी विल ओके कवर सर। अप देयर बिकॉज देयर आर मेनी स्लाइड्स. तो पढ़ना है हाँ, डिवेंचर। आप पहले ये कंप्लीट कर देते हैं. ठीक है. और एक क्लास लगेगा फॉर फीचर एंड री इशू कंप्लीट कर देंगे. ठीक है. अगेन वी हैव 10 स्लाइड्स फॉर दैट. प्रॉब्लम है ना, सो वी हैव टू डू इट क्लियरली. ठीक है. थोड़ा उसमें टाइम देके हम लोग कवर कर देंगे सो दैट यू कुड एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स क्लियरली. ठीक है. यू पास दिस इंफॉर्मेशन टू योर फ्रेंड्स. बारिक सर. थैंक यू सर। थैंक यू.